قضا نمازیں کرنے کا انتہائی آسان طریقہ۔ قضا نماز کیسے پڑھیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قضا نماز پڑھنے کا انتہائی آسان طریقہ بتائیں گے، جو کہ ہمارے بڑے علماء کرام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، 5 نمازیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض قرار دیا ہے۔ جس نے ان نمازوں کو بہترین وضو کے ساتھ ان کے مقررہ اوقات پر ادا کیا اور ان نمازوں کو رکوع، سجود اور کامل خشوع سے ادا کیا تو ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے گا، اور جس نے ایسا نہیں کیا یعنی نماز ہی نہ پڑھی یا نماز کو اچھی طرح نہ پڑھا تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، اگر چاہے تو اس کی مغفرت فرما دے اور چاہے تو اس کو عذاب دے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موسم سرما میں جب پتے درختوں سے گر رہے تھے باہر نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی 2 شاخوں کو پکڑ لیا اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شاخ سے پتے گرنے لگے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، اے ابو ذر۔ میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان بندہ جب نماز اس مقصد سے پڑھتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح یہ پتے درخت سے جھڑتے جا رہے ہیں۔ نماز ادا کرنے کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً 700 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے۔ درج ذیل احادیث مبارکہ میں نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور ان پر آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے نماز سے متعلق بہت اہم معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ محترم ناظرین، قضا نمازیں کیسے پڑھیں؟ یعنی اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہوں تو اب وہ ان نمازوں کو پڑھنا چاہتا ہے تو ان نمازوں کے پڑھنے کا آسان طریقہ کیا ہے، اسی مسئلے کو دھیان سے سننے کی ضرورت ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو سن کر آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ جس نے کبھی بھی نماز نہ پڑھی ہو اب اسے توفیق نصیب ہو رہی ہے، اور اگر وہ ان قضا نمازوں کو پڑھنا چاہتا ہے تو جب سے وہ بالغ ہوا ہے اس وقت سے نمازوں کا حساب لگائے اور جتنی نمازیں اس کی قضا ہیں اگر وہ ان تمام نمازوں کو ادا کرنا چاہتا ہے لیکن اسے بالغ ہونے کی تاریخ یاد نہیں ہے، اسے معلوم نہیں ہے کہ کب وہ بالغ ہوا تھا، تو فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ اگر عورت ہے تو پھر 9 سال سے اور اگر مرد ہے تو پھر 12 سال سے بلوغت کا حساب لگائے، اور پھر اسی حساب سے جتنے سالوں کی قضا نمازیں اس کے اوپر ہیں ان تمام نمازوں کو ادا کریں۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قضا نماز ہر روز کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں، یعنی قضا نمازوں میں سنتوں اور نوافل کی قضا نہیں ہوتی، صرف فرضوں اور وتر کی ہی قضا کی جائے گی، یعنی فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر، ان کی قضا کی جائے گی۔ اس کے علاوہ باقی جو سنتیں اور نوافل ہیں ان کی قضا نہیں کی جائے گی۔ اور قضا نماز کی نیت کیسے کرنی ہے؟ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادوں کو، لیکن اگر زبان سے کہنا چاہیں تو پھر اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں سب سے پہلے قضا ہونے والی فجر نماز کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ اور ایسے ہی ظہر کا کہیں گے سب سے پہلے قضا ہونے والی عصر نماز کی، سب سے پہلے قضا ہونے والی مغرب کی، سب سے پہلے قضا ہونے والی عشاء نماز کی، اور سب سے پہلے قضا ہونے والی وتروں کی، یعنی جب بھی نیت کریں گے اس وقت یہی کہیں گے کہ سب سے پہلے جو قضا ہونے والی ہے، جو نماز ہم ادا کر لیتے ہیں وہ ہمارے سر سے اٹھ جاتی ہے، اس سے ہم بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو قضا ہونے والی نماز ہوتی ہے وہی ہماری سب سے پہلی قضا ہونے والی ہوتی ہے، کیونکہ جو پہلی ہماری قضا نماز تھی وہ ہم ادا کر چکے ہیں، اس سے بری الذمہ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد والی پھر ہماری سب سے پہلی قضا نماز کہلاتی ہے۔ اس طریقے سے ہم قضا نمازیں ادا کریں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کی کثیر نمازیں قضا ہو چکی ہیں، اب اس بارے میں فقہائے کرام بیان کرتے ہیں کہ بہتر تو یہی ہے کہ جس طرح نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح مکمل نماز پڑھے، لیکن اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو اس کے لیے تخفیف ہے۔ تخفیف کیا ہے؟ سب سے پہلی تخفیف تو یہ ہے کہ رکوع میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان ربی العظیم، تو 3 مرتبہ کی جگہ 1 مرتبہ پڑھے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ جب وہ اچھے طریقے سے رکوع میں پہنچ جائے تو تب
एक मरतबा तस्बीह पढ़ना भी काफ़ी होगा और तस्बीह मुकम्मल हो जाने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह कर खड़ा हो जाए। इसी तरह सजदे में जो तस्बीह पढ़ी जाती है, सजदे में भी कम अज़ कम 3 मरतबा तस्बीह पढ़ी जाती है। तो सजदे में भी 3 मरतबा की जगह 1 मरतबा तस्बीह पढ़ ले तो ये सजदा हो जाएगा। मतलब ये कि हर रुकू और सजदे में सिर्फ 1 मरतबा तस्बीह पढ़ ले तो काफ़ी होगी। एक तो तखफीफ ये हुई। दूसरी तखफीफ, जिस तरह 4 रकात फ़र्ज नमाज पढ़ रहा है, यानी ज़ोहर के हैं, असर के हैं या इशा के हैं या मगरिब के 3 फ़र्ज हैं, उनमें यह है कि तीसरी और चौथी रकात में सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। लेकिन अगर किसी की बहुत ज़्यादा नमाज़ें कज़ा हो चुकी हैं तो उसमें यह तखफीफ है कि सूरह फातिहा की जगह 3 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ ले, यानी सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह ये पढ़कर रुकू में चला जाए। दूसरी तखफीफ ये हो गई। तीसरी तखफीफ ये है कि कायदा आखिर में, यानी जब नमाज खत्म होती है तो पढ़ते हैं अत्तहियात। मुकम्मल करने के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है और फिर दुआ पढ़ी जाती है। इसमें यह है कि अत्तहियात पढ़ने के बाद दुरूद पढ़ने की जगह सिर्फ इतना पढ़ ले, यानी इतना दुरूद के कलिमात पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये तीसरी तखफीफ है। इसके बाद फिर सलाम फेर लें, यानी मुकम्मल दुरूद पाक और दुआ ना पढ़ने की इजाज़त है। ये तखफीफ है उस शख्स के लिए जिसकी कसीर तादाद में नमाजें कज़ा हुई हों। और चौथी तखफीफ ये है कि जो वित्र नमाज है, तीसरी रकात में सूरत ज़रूर मिलानी है। फ़र्ज़ों में तीसरी और चौथी रकात में सूरह की जगह 3 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ लेना काफ़ी है। लेकिन वित्र की जो नमाज है उसमें तीसरी रकात में सूरह फातिहा भी पढ़ी जाएगी और दूसरी सूरत भी मिलानी ज़रूरी है। अब अल्लाहु अकबर कहकर दुआ क़ुनूत पढ़ी जाती है, लेकिन दुआ क़ुनूत की जगह अगर वो रब्बिग़फ़िरली 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 ये 3 मरतबा पढ़ ले या फिर 1 मरतबा पढ़कर रुकू में चला जाए तो तब भी उसकी नमाज बिल्कुल दुरुस्त है। कज़ा नमाजों के लिए इस तखफीफ के साथ अगर नमाज पढ़ेंगे तो आपकी जो बहुत ज़्यादा नमाजें कज़ा हो चुकी हैं वो बहुत जल्द अदा हो जाएंगी। फुक़हा कराम बयान करते हैं कि इस तरीके से इस तखफीफ का फ़ायदा उठाकर जिस शख्स की ज़्यादा नमाजें कज़ा हो चुकी हैं वो अपनी नमाजों को जल्द अदा करके फ़राइज़ से बयुज़्ज़मा हो जाएं। और याद रखिए, कज़ा नमाजों के साथ साथ तौबा करना ज़रूरी है, क्योंकि नमाजें जो कज़ा हुई हैं उनका गुनाह तो है, तो गुनाह से तौबा करना लाजमी होता है। एक तो नमाज अदा करेंगे, इसके बाद फिर सच्चे दिल से तौबा करें। तो इस आसान तरीके से अपनी कज़ा नमाजों को अदा करके अल्लाह की बारगाह में सुरखरू हो जाएंगे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर किसी शख्स ने बुलूगत की काफ़ी अरसा गुजर जाने के बाद नमाज पढ़ना शुरू की हो या कभी पढ़ता हो और कभी छोड़ देता हो तो इस पर लाजिम है कि ज़िंदगी से मुताल्लिक़ ज़रूरी कामों के अलावा सब काम छोड़कर नमाजों की कज़ा शुरू कर दें। वो उस वक्त तक कज़ा नमाज़ें अदा करता रहे जब तक उसके गालिब गुमान के मुताबिक तमाम कज़ा नमाज़ें अदा ना हो जाएं। अगर इस दौरान उसको मौत आ गई तो अल्लाह ताला के फजल से उम्मीद है कि उसकी बख्शिश हो जाएगी। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, और जो शख्स भी अपने घर से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हिजरत करते हुए निकले, फिर उसे रास्ते में ही मौत आ पकड़े तो उसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे साबित हो गया, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। और अगर कोई शख्स ऐसा ना कर सके तो उससे कम दर्जे ये है कि हर नमाज के साथ एक या जिस कदर मुमकिन हो कज़ा नमाज पढ़ता रहे। कज़ा नमाजों के सिर्फ फ़राइज़ और वित्र अदा करें। मसलन पूरे दिन की कज़ा नमाज़ें अदा करनी है तो फिर कुल 20 रकात इस तरह अदा करे: 2 फ़र्ज़ फजर, 4 फ़र्ज़ ज़ोहर, 4 फ़र्ज़ असर, 3 फ़र्ज़ मगरिब, 4 फ़र्ज़ इशा बमा 3 वित्र। इस तरह नियत करें। मसलन मैं अपनी गुज़श्ता फजर को अदा करने की नियत करता हूँ जिसका मैंने वक्त पाया और अदा नहीं की। हर कज़ा नमाज की इसी तरह नियत करे, यानी दिल में इरादा करे, ज़बान से कहना बेहतर है, ज़रूरी नहीं। मोहतरम नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाक मट्टी मुसलमान को पाक करने वाली है। फिर वो 10 साल तक पानी न पाए, फिर जब वो पानी पा ले तो उसे अपनी खाल यानी जिस्म पर बहाए, यानी उसके लिए बेहतर है। नाज़रीन, ग़ज़वा खैबर के मौके पर एक चरवाहा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ। वो यहूदियों की बकरियां चराया करता था। उस चरवाहे ने जब देखा कि खैबर से बाहर मुसलमानों का लश्कर पड़ाव डाले हुए है, उसके दिल में ख्याल आया कि मैं जाकर उनसे मुलाकात करूं और देखूं कि ये मुसलमान क्या कहते हैं और क्या करते हैं। चुनाचे बकरियां चराता हुआ मुसलमानों के लश्कर में जा पहुंचा और उनसे पूछा कि तुम्हारे सरदार कहाँ हैं। सहाबा किराम ने बताया कि हमारे सरदार हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खैमे के अंदर हैं। पहले तो उस चरवाहे को उनकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था और उसने सोचा कि इतने बड़े सरदार एक मामूली से खैमे के अंदर कैसे बैठ सकते हैं। उनके
जहन में ये था कि जब आप इतने बड़े बादशाह हैं तो बहुत ही शान और शौकत और ठाट बाट के साथ रहते होंगे, लेकिन वहाँ तो खजूर के पत्तों की चटाई से बना हुआ खैमा था। खैर, उस खैमे के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए दाखिल हुआ और आपसे मुलाकात की और पूछा कि आप क्या पैगाम लेकर आए हैं और किस बात की दावत देते हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने इस्लाम और ईमान की दावत रखी और इस्लाम का पैगाम दिया। उसने पूछा कि अगर मैं इस्लाम की दावत कबूल कर लूँ तो मेरा क्या अंजाम होगा और क्या रुतबा होगा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम लाने के बाद तुम हमारे भाई बन जाओगे और हम तुम्हें गले से लगाएंगे। उस चरवाहे ने कहा कि आप मुझसे मजाक कर रही हैं, मैं कहाँ और आप कहाँ, मैं एक मामूली सा चरवाहा हूँ और मैं स्याह फाम इंसान हूँ, मेरे बदन से बदबू आ रही है, ऐसी हालत में आप मुझे कैसे गले से लगाएंगे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम तुम्हें ज़रूर गले से लगाएंगे और तुम्हारे जिस्म की स्याही को अल्लाह ताला ताबानी से बदल देंगे और अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्म से उठने वाली बदबू को खुशबू से बदल देंगे। ये बातें सुनकर वो फौरन कलमा शहादत पढ़कर मुसलमान हो गया। फिर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, अब मैं क्या करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ऐसे वक्त पर ईमान लाए हो कि ना इस वक्त किसी नमाज का वक्त है कि तुमसे नमाज पढ़वाऊं और ना ही रोजा का जमाना है कि तुमसे रोजे रखवाऊं और ज़कात तुम पर फर्ज नहीं है। इस वक्त सिर्फ एक इबादत हो रही है जो तलवारों की छांव में अंजाम दी जाती है और वो जिहाद है। उस चरवाहे ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस जिहाद में शामिल हो जाता हूँ, लेकिन जो शख्स जिहाद में शामिल होता है उसके लिए दो में से एक सूरत होती है, या गाजी या शहीद। तो अगर मैं जिहाद में शहीद हो जाऊं तो वहां मेरी कोई जमानत ले। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस बात की जमानत देता हूँ कि अगर तुम इस जिहाद में शहीद हो गए तो अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में पहुंचा देंगे और तुम्हारे जिस्म की बदबू को खुशबू में तब्दील फरमा देंगे और तुम्हारे चेहरे की स्याही को सफेदी में तब्दील फरमा देंगे। चूँकि वो चरवाहा यहूदियों की बकरियां चराता हुआ वहां पहुंचा था, इसलिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जो बकरियां लेकर आए हो उनको जाकर वापस करो, इसलिए कि ये बकरियां तुम्हारे पास अमानत है। इससे अंदाजा लगाएं कि जिन लोगों के साथ जंग हो रही है, जिनका मुहासरा किया हुआ है, उनका माल गनीमत है, लेकिन चूंकि वो चरवाहा बकरियां मुआहदे पर लेकर आया था, इसलिए आपने हुक्म दिया कि पहले वो बकरियां वापस करके आओ, फिर आकर जिहाद में शामिल होना। चुनांचे उस चरवाहे ने जाकर बकरियां वापस की और वापस आकर जिहाद में शामिल हुआ और शहीद हो गया। जब जंग खत्म हुई तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर का जायजा लेने लगे। एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सहाबा इकराम का मजमा इकट्ठा है। जब आप करीब पहुंचे तो उनसे पूछा कि क्या बात है। सहाबा इकराम ने फरमाया, जो लोग जंग में शहीद हो गए उनमें से एक आदमी ऐसा भी है कि जिसको हम में से कोई नहीं पहचानता। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो फरमाया कि तुम उस शख्स को नहीं पहचानते मगर मैं उस शख्स को पहचानता हूँ। ये चरवाहा है और ये वो अजीब व गरीब बंदा है जिसने अल्लाह की राह में एक भी सजदा नहीं किया, और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला ने सीधा इसको जन्नतुल फिरदौस में पहुँचा दिया है और मेरी आंखें देख रही हैं कि मलाइका इसको गुस्ल दे रही हैं और इसकी स्याही सफेदी में तब्दील हो गई है और इसकी बदबू खुशबू से तब्दील हो गई है। नाज़रीन, अंदाजा करें और देखें, अगर कुछ अर्सा पहले उस चरवाहे को मौत आ जाती तो सीधा जहन्नुम में चला जाता, और अब उस हालत में मौत आई कि ईमान ला चुका है और सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बन चुका है। नमाज के लग़्व मायने दुआ के हैं। कुरान में फरमान अल्लाह है, ए पैगंबर, उन लोगों के अम्वाल में से सदका वसूल कर लो जिसके जरिए तुम उन्हें पाक कर दोगे और उनके लिए बाइस बरकत बनोगे, और उनके लिए दुआ करो, यकीनन तुम्हारी दुआ उनके लिए सरापा तस्कीन है और अल्लाह हर बात सुनता और सब कुछ जानता है। जबकि फरमान नबवी है, तर्जमा, जब तुम में से किसी को दावत दी जाए तो वो उसे कबूल कर ले, फिर अगर वो रोजे से हो तो दुआ कर दे और अगर रोजे से ना हो तो खाना खा ले। हशाम बिन हकम ने जाफर सादिक से सवाल किया, नमाज का क्या फलसफा है कि लोगों को कारोबार से रोक दिया जाए और उनके लिए जहमत का सबब बने। उन्होंने इसके जवाब में फरमाया, नमाज के बहुत से फलसफे हैं, उन्हीं में से एक ये भी है कि पहले लोग आज़ाद थे और खुदा और रसूल की याद से गाफिल थे और उनके दरमियान सिर्फ कुरान था। उम्मत मुस्लिमा भी गुज़श्ता उम्मतों की तरह थी क्योंकि उन्होंने सिर्फ दीन को इख्तियार कर रखा था और किताब और अंबिया को छोड़ रखा था और उनको कत्ल तक कर देते थे। नतीजे में उनका दीन पुराना बेरूह हो गया और उन लोगों को जहाँ जाना चाहिए था चले गए। खुदावंद आलम ने इरादा किया कि ये उम्मत दीन को फरामोश न करे, लिहाजा इस
उम्मत मुस्लिमा के ऊपर नमाज को वाजिब करार दिया ताकि हर रोज 5 बार हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करें और उनका इस्म गिरामी ज़बान पर लाएं और इस नमाज के जरिए खुदा को याद करें ताकि इससे गाफिल न हो और इस खुदा को तर्क न कर दिया जाए। नमाज सबब बनती है कि इंसान हमेशा खुदा की याद में रहे और उसे भूले नहीं, नाफरमानी और सरकशी ना करे, खुशू खुजू और रुग़बत और शौक के साथ अपने दुनियावी और उखरवी हिस्से में इजाफे का तलबगार हो। इसके अलावा इंसान नमाज के जरिए हमेशा और हर वक्त खुदा की बारगाह में हाजिर रहे और उसकी याद से सरशार रहे। नमाज गुनाहों से रोकती और मुख्तलिफ बुराइयों से मना करती है। सजदे का फलसफा गुरूर, तकब्बुर, खुदख्वाही और सरकशी को खुद से दूर करना और खुदाए वहदहू ला शरीक की याद में रहना और गुनाहों से दूर रहना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हर उस शख्स के कबीरा गुनाहों की बख्शिश जिसने अल्लाह के साथ शिरक ना किया होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ का हुक्म ज़मीन पर वही के ज़रिए नाजिल फरमाया, लेकिन नमाज एक ऐसा अहम फरीज़ा और अजीम शान तोहफ़ा है कि जिसे अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए ज़मीन पर नहीं बल्कि पैगम्बर खैरुल वरा को आसमानों की बुलंदियों पर बुलाकर अता फरमाया। इस वाक़ये से नमाज की अहमियत और अज़मत ज़ाहिर होती है। दीन इस्लाम के 5 अराकीन में से नमाज एक अहम रुकन है। नमाज को आंखों की ठंडक करार दिया गया। नमाज मोमिन बंदे और काफिर में तमीज़ करने वाली कसौटी है। नमाज से दिलों को सुकून और करार हासिल होता है। नमाज कुर्ब इलाही का बहुत बड़ा जरिया है। क़यामत के दिन सबसे पहला पर्चा और लाजमी सवाल नमाज का होगा। इस पेपर में कामयाब तमाम इम्तिहानी पर्चों में कामयाब करार पाएगा। इसमें नाकामी पर अज़ाब इलाही का मौजिब बनेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आते हुए जनाब हजरत मूसा कलीमुल्लाह के पास से गुजरने लगे तो उन्होंने पूछा कि अल्लाह ताला ने आपको क्या हुक्म दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत पर हर दिन और रात में 50 नमाजें फ़र्ज की हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आपकी उम्मत हर दिन रात में 50 नमाजें पढ़ने की ताकत नहीं रखती, लिहाजा रब्बे ताला के पास जाओ और तखफीफ करा लो, क्योंकि मैंने बनी इसराइल को आजमाया है और इस तजर्बे की रोशनी में कहता हूँ कि आपकी उम्मत इसकी ताकत नहीं रखती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं दोबारा सिदरातुल मुंतहा के पास गया और अल्लाह ताला से नमाजें कम करने की दरख्वास्त की तो रब्बुल आलमीन ने 5 नमाजें कम कर दी। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजर हुआ तो उन्होंने कहा कि ये भी ज़्यादा हैं और कम करा लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं बार बार तखफीफ की गुजारिश करता रहा। आखिरकार अल्लाह ताला ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत 5 नमाजें पढ़ा करे तो मैं अजर 10 का दूंगा और एक नेकी का अजर हमारे हाथ 10 गुना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत 5 नमाजें पढ़ेगी, उनके अमाल नामे में 50 दर्ज की जाएंगी, यानी 50 नमाजों का अजर और सवाब मिलेगा। पढ़ने में 5 और सवाब के लिहाज से 50। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर इरशाद फरमाया, जो नेकी का इरादा करेगा उसके लिए नेकी करने से पहले ही एक नेकी लिख दी जाती है। सुभान अल्लाह। गौर फरमाए कि 5 नमाजों का अजर 50 का पाएं। आज कितने लोग हैं जो नमाजें पढ़ते हैं? अगर मैं यूं कहूँ तो बजा होगा कि 5% मुसलमान नमाजी हैं, लेकिन हम मेराज बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। खाने आला से आला किस्म के पकते हैं, जुलूस निकाले जाते हैं, मस्जिदों मज़ारों सरकारी और गैर सरकारी इदारों की इमारतों पर चरागां किया जाता है। कोई रोज़ा रखता है तो कोई रात का क़याम करता नजर आता है, हालांकि शरीयत मुहम्मदिया में इन रसूमात का कोई सबूत नहीं। मेराज की असल रूह नमाज से हम गाफिल हैं। जिस चीज़ का सबूत नहीं उसका एहतमाम किया जाता है और जिस चीज़ के करने का हुक्म दिया गया है उसकी परवाह नहीं। नमाज मिन जानिब अल्लाह तोहफ़ा है, इसकी कदर करें। गौर फरमाएं कि हमारा कोई अजीज रिश्तेदार हमारे घर तोहफ़ा लेकर आ जाए और हम उसे कबूल ना करें, कदर ना करें, तो वह हमारे साथ तो तवक्कुआत ख़त्म करने को तैयार हो जाता है। क्या रब्बुल आलमीन का हम पर इतना भी हक नहीं कि हम नमाजें पढ़कर उसके तोहफे को कबूल करें? उम्दन नमाज छोड़ना कुफ्र है। जिस शख्स की असर की नमाज फौत हो गई उसका घर और माल तबाह बर्बाद हो गया। जो 5 नमाजों की हिफाजत नहीं करता वो क़यामत के दिन फ़िरौन, कारून, अबी बिन खलफ के साथ होगा। मुसलमान बंदे और कुफ्र के दरमियान फ़र्क नमाज का छोड़ना है। इन अहादीस की रोशनी में हमें सोचना होगा कि नमाज छोड़ना कितना बड़ा संगीन जुर्म है। नमाज का छोड़ना अल्लाह के तोहफे की नाकदरी और कबूल ना करने के मुतरादिफ है। नमाज छोड़ना अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म का इनकार है। मेरे ख्याल में जहाँ अवाम नमाज छोड़ने में मुजरिम है वहाँ हुक्मरान भी पीछे नहीं। तारीक नमाज का कोई भी अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं। ना हज, ना कुर्बानी, ना रोज़े, ना सदका और खैरात। शब मेराज का क़याम करने वाले को रोज़ा रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। दुआ करते हैं अल्लाह ताला हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका वसीला जलीला से हमें दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें भी जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम
तमाम अता फरमाए, आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।